نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بدم کائنات دستگیر جہاں غم گسار بے قصاں سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں آیت کریمہ کا حصہ بیان کیا مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کے سمجھ کے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، جو مجھ سے محبت میں مجھ پر درود پڑھے تو میں اس بندے کو پہچانتا ہوں۔ کس بندے کو؟ جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھے۔ تو دیکھیے کہ انسان پوری زندگی پہچان بنانے میں گزار دیتا ہے۔ انسان اپنا شناختی کارڈ بنواتا ہے، کیوں؟ تاکہ میری پہچان ہو جائے۔ اس کے بعد اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک تختی لگاتا ہے جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ میری پہچان بن جائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے تو وہی بندہ مرحبا یا مصطفیٰ کا پوسٹر بنوا کر گلیوں کے اندر لگاتا ہے، بازاروں میں لگاتا ہے، چوراہوں میں لگاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مرحبا یا مصطفیٰ کا پوسٹر ہوتا ہے، نیچے چھوٹی سی اپنی تصویر لگاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ پہچان بن جائے۔ اور جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو اپنے لیڈر کی تصویر بڑی سی بنوا کر اس کے نیچے اپنی چھوٹی سی تصویر لگواتا ہے اور اپنا نام لکھواتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پہچان بن جائے۔ ہر جگہ پر اپنی پہچان بنا رہا ہے، لیکن رب کا قرآن اعلان فرما رہا ہے
ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ وہ بندہ جو ہر وقت اپنی پہچان بنانے میں لگا رہا، ہر وقت اپنا نام بنانے میں لگا رہا، کہ ہر مقام کے اوپر اپنی پہچان کی نشانی لگاتا رہا کہ مشکل وقت آئے گا تو یہ لوگ میرا ساتھ دیں گے، کبھی مشکل آ گئی تو یہ میرا بازو بنیں گے، تاکہ میری پہچان ہو، لوگ مجھ سے محبت کریں، اتنا بڑا آدمی ہے، ایسے کام کرتا ہے، پہچان بن گئی تو مشکل وقت میں میری مدد کریں گے۔ لیکن رب کا قرآن فرما رہا ہے ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب جتنے پہچاننے والے ہوں گے سب کے سب چھوڑ جائیں گے، رشتہ دار بھی دور چلے جائیں گے، عزیز و اقارب بھی دور چلے جائیں گے، یہاں تک کہ سگی ماں جو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ بھی چھوڑ کر چلی جائے گی، سگا باپ بھی چلا جائے گا۔ جب سارے رشتہ دار منہ موڑ لیں گے، جب سب کوئی چھوڑ کر چلا جائے گا، اس بندے سے نا ہم اپنا تعلق جوڑ لیں جو اس وقت بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس شخصیت سے اپنا نا تعلق جوڑ لیں جو اس مشکل وقت میں بھی ساتھ دے گا۔ اس وقت آ کر وہ اگر پہچان لے تو بندے کا کام نہ بن جائے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت ایسی شخصیت ہے جب بندے کا آخری وقت آئے گا نا، سارے رشتہ دار قبر تک ساتھ جائیں گے، وہاں بندے کو سلا کر اوپر سے مٹی ڈال دیں گے، سب واپس آ جائیں گے، سگا بھائی بھی واپس آ گیا، والد بھی واپس آ گیا، بیٹا بھی واپس آ گیا، سارے عزیز و اقارب وہاں چھوڑ کر اندھیری قبر ہوگی، وہاں سناٹا ہوگا، وہاں پر اندھیرا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر وحشت ہوگی۔ اور اس مشکل وقت میں جب سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو وہاں والضحیٰ کے چہرے والے محمد عربی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم نے دنیا کے اوپر بکثرت درود پڑے ہوں گے تو رب کے محبوب نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر محبت سے درود پڑے تو میں اسے پہچان لیتا ہوں۔ جب سارے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو سامنے بیٹھے ہوں گے کرسی کے اوپر، اس وقت جب فرشتے پوچھیں گے بتا ان کے بارے میں جانتا ہے یہ کون ہے، تو اس وقت حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں اس سے نہیں، آج مجھ سے پوچھو، یہ دنیا کے اوپر مجھ پر درود پڑتا رہا ہے، آج جب سارے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو مجھ سے پوچھو، میں اسے پہچان گیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ تو کیوں نہ ہم دنیا کے اوپر حضور علیہ السلام سے اپنی پہچان بنوا لیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے تو وہ جس نے پہچانا ہوگا وہ وہاں بھی نہیں چھوڑے گا، اور محشر کے دن بھی شفاعت فرمائے گا۔ تو سامعین نعمت اور ہم چاہیے ہم کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں۔ تو اب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا پر بھیجا ہے، لیکن ہم رب کی نافرمانیوں میں اپنا ٹائم گزار رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ لوگ نیکی کی چابی اور برائی کا تالا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ برائی کی چابی اور نیکی کا تالا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نیکی کی چابی ہیں اور برائی کا تالا ہے۔ تو سامعین محترم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے قریب بیٹھو تو کیا ہوتا ہے کہ نماز سے بندہ جی چرانے والا بن جاتا ہے، ہر وقت بندہ بےہودگیاں پڑھتا رہتا ہے، ہر وقت بندہ گناہ کے کام میں لگا رہتا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے پاس ہم بیٹھے اور ہم برائی کے عادی بن گئے تو وہ لوگ برائی کی چابی اور نیکی کا تالا ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس تم بیٹھو گے تو تمہارا دل بھی کرے گا کہ میں یار 5 وقت کی نماز پڑھا کروں،
तुम्हारा जी भी करेगा कि यार मैं भी सुन्नत मुस्तफ़ा के चेहरे पे सजा लूं, तुम्हारा मन भी करेगा कि मैं भी तस्बीह पढ़ता रहूं, रब का जिक्र करता रहूं, रब के महबूब पर दुरूद पढ़ता रहूं, तो वो लोग नेकी की चाबी हैं और गुनाहों का ताला है। तो हमें भी ऐसे लोगों के बारे में या ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। मौला कायनात हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, या अली ये बताएं, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरी औलाद अच्छी हो जाए, नेक हो जाए, परहेजगार बन जाए, रब और रब के महबूब की फर्मा बरदार बन जाए। तो मौला कायनात ने फरमाया, फिर अपनी औलाद के दोस्तों को देखो वो कैसे हैं, नेक दोस्त उसके बना दो, तेरी औलाद भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस मुबारक है, अलमर्रु अला दीन खलील ही, कि बंदा अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। तो आज हम देखें कि हमारा ताल्लुक किन लोगों के साथ है, हमारे दोस्त कैसे हैं, क्या वो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद हैं, क्या वो नेकी का काम करने वाले हैं, या हमारे दोस्त ऐसे तो नहीं जो चोर लुटेरे डाकू हों, शराबी हों, जना के आदी हों, जुआरी हों, सूदखोर हों, क्या ऐसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक तो नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे बन जाए तो हमारे दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। आओ आपको एक वाक़या सुनाता हूं। जब अच्छा दोस्त मिल जाए तो फिर जिंदगी कैसे बदलती है। एक शख्स है, वो कहता है कि मैं बड़ा अमीर कबीर था, रब ताला ने बड़ा माल दिया था, रब ताला ने बड़ी इज्जत दी थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने शादी की तो मेरी औलाद ना हुई। औलाद की नेमत बहुत बड़ी नेमत है, जिनकी नहीं है उनसे पूछें। तो ये रब की ऐसी नेमत है, जो ना हो घर पर तो फिर बंदे को घर भी अजीब सा लगता है। लेकिन सामीन मोहतरम, हम रब की नेमतों की कदर नहीं करते। अगर बंदा ऐनक बनवाए, 1500 की ऐनक बने, तो बंदा उसको अच्छे से कपड़े में लपेट कर डबिया के अंदर रखता है। वजह क्या है कि 1500 रुपए लगे हैं, इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो खराशियां आएंगी शीशे के ऊपर, फिर पैसे लगाने पड़ेंगे, उसकी कदर है। वजह है कि पैसे लगे हैं। यार रब ताला ने हमें जो आंख की नेमत दी है, अगर हम इसी को देखें, अगर इसी की कीमत अदा करनी पड़े, जितने पैसों दोगे उतना तुम्हें नूर मिलेगा, तो हम तो सारी जिंदगी एक कीमत की इसकी अदा नहीं कर सकते। तो इस आंख की कीमत जो है, इसकी कदर करनी चाहिए। और इसकी कीमत क्या है? इसकी हया है। हया करनी चाहिए कि हम बाजारों में जाएं तो हम निगाह उठा उठा कर और औरतों को देखते हैं। एक बुजुर्ग के बारे में वाक्य मिलता है कि बाजार में गए तो जब वहां पहुंचे ना, तो एक औरत के ऊपर निगाह पड़ी, तो रब से दुआ मांगी, या मालिक करीम, तूने आंख दी थी मुझे वैसे अपना रास्ता देखने के लिए, या अपने घर को देखने के लिए, या अपने कलाम को देखने के लिए, लेकिन मेरी निगाह तो गलत उठी है, ये नूर आंखों का ले ले। तो रब ताला ने आंखों का नूर ले लिया। फिर क्या हुआ? एक छोटे बच्चे को साथ ले जाते, मस्जिद जाते, वहां नमाज पढ़ते, जब वापसी आते तो उस बच्चे को साथ ले आते। एक दिन खौफ महसूस हुआ, कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है, तो फिर रब से दुआ मांगी, या मालिक करीम, मैंने इसलिए दुआ मांगी थी कि कहीं आंख के जरिए मैं जहन्नम न बन जाए मेरे लिए, तो मैंने इसलिए दुआ मांगी थी कि नूर चला जाए। अब मुझे वहशत हो रही है, डर लग रहा है, मैं अब तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा, मुझे आंखों का नूर अता फरमा दे। तो रब ताला ने उस नूर को वापस कर दिया। तो वो बुजुर्ग तो इतनी आंखों की हिफाजत करते थे। तो वो मैं कह रहा था कि वो कहता है कि मैं बड़ा अमीर था, बड़े पैसे थे, जायदादें भी थी, लेकिन औलाद नहीं थी। वो कहता है कि मेरे वालिदैन ने कहा कि दूसरी शादी कर ले, मैंने वो की, फिर भी औलाद ना हुई। तीसरी शादी की, फिर भी औलाद ना हुई। वालिदैन ने कहा कि 4 शादियों की शरअन इजाजत है, चौथी भी कर ले, मैंने चौथी शादी कर ली। जब शादी की ना, तो जब दुल्हन को लेकर मैं घर आया, घर को रात हुई, जब सुबह का वक्त हुआ तो मेरी बीवी ने मुसल्ला उठाया, वुज़ू किया, तहज्जुद भी पढ़ी है और नमाज भी पढ़ी है।
मेरे घर में से कोई भी नमाज नहीं पढ़ता था। फिर उठी, रब का कुरान उठाया, रब के कलाम को उठाया, उठाकर तिलावत शुरू कर दी। पहला दिन था जब मेरे घर में नमाज भी पढ़ी गई, रब के कुरान में से सूरह यासीन की तिलावत की आवाज भी आ रही थी। तो जब ये देखा, मेरी बीवी देखती रही कि इसमें घर में तो ना कोई कुरान पढ़ने वाला है, ना नमाज पढ़ने वाला है। कुछ दिन गुजरे तो मैं, फसलों का दिन थे, अपने जाता फसलों काटने के लिए, वहां लोगों की देखभाल करता जो फसलें काट रहे होते। शाम को थका हारा घर आता। एक दिन शाम को आया ना, तो मेरी बीवी मेरे करीब बैठी, मेरे पांव दबाने लगी। पांव दबाती रही, अर्ज की, ऐ मेरे सरताज, अगर इजाजत हो तो एक अर्ज करूं। मैंने फरमाया जी बताओ। उसने कहा कि अगर इजाजत हो तो कल सुबह के लिए तुम्हें जगाऊं कि रब के हुजूर सजदा रेज हो जाओ। तो वो कहता है कि मैंने आगे से जवाब दिया कि तुम जो पढ़ती हो ये काफी है। तो फिर मैं मुस्कुराने लगा। तो मैंने कहा कि मैंने शादी तुमसे इसलिए की कि मेरी औलाद नहीं होती, मैं औलाद के हसूल के लिए तुमसे शादी कर रहा था और की है, तो मुझे और कोई गर्ज नहीं तो इसे। तो उसने आगे से मुस्कुरा कर जवाब दिया, औलाद जिसने देनी है एक मरतबा सुबह उससे मांग कर तो देख, वो कैसे नहीं देता। तो मैंने कहा कि आगे बात ना बढ़ा, मेरी जबान खुलेगी तू अपने मेके चली जाएगी। तो वो कहती है चलो एक बात बता, मेरा हक भी तुम पर है। तो मैंने जवाब दिया जी हाँ तेरे हक मेरे पर हैं, सारे हकूक पूरे करूंगा। घर वालों से पूछ लो, मेरी 3 बीवियां और हैं, उनसे पूछो, सब के हकूक पूरे करता हूं। उसने कहा कि मैंने सब के सब हकूक माफ किए हैं, बदले में एक बात चाहिए। पूछी क्या? कहा सारे हकूक माफ किए हैं, कल सुबह की नमाज पढ़ लेना। जिंदगी के सारे हकूक माफ, एक सुबह की नमाज पढ़ने के लिए। आगे से मैंने जवाब दिया, वादा करती हो आइंदा नहीं कहोगी? मैंने कहा नहीं कहूंगी। फिर क्या हुआ, सुबह हुई, उसने मुसल्ला से जाया, मुझे जगाया, जगाकर कहा जाओ अस्तंजा करके वापस आओ, मैं तुम्हारा वुजू कराती हूं। तो मैंने आगे से कहा कि वुजू का मुझे पता है, तुम आराम करो, मैं वुजू कर लूंगा। आगे से जवाब आया नहीं, जब सारे हकूक माफ कर दिए हैं तो फिर वुजू मैं खुद कराऊंगी। जब वुजू कराया तो मुझे उस वक्त पता चला जैसे मैं करता था वो वुजू दुरुस्त नहीं था। वुजू कराया, मैं मुसल्ले के ऊपर खड़ा हुआ, मैं खड़ा होकर नमाज की नियत बांध रहा हूं। मेरी बीवी सजदे में जाती है, जमीन के ऊपर पेशानी टेकती है, रब की बारगाह में दुआ मांगती है, या मेरे मालिक तू सब कुछ जानता है, मैंने अपने हकूक भी माफ कर दिए, मुझे तलाक की धमकियां भी दी गई, मुझे सख्त लहजे में बात भी की गई, सब कुछ कहा गया, मेरा जोर यहां तक चलता था, मैं तेरे दर तक ले आई हूं, आगे तू जान, तेरा बंदा जाने, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। जैसे जैसे उसकी दुआएं बढ़ रही थी, वो कहता है कि मेरे दिल की दुनिया साफ हो रही थी, मेरी मान की बस्तियां जो उजड़ चुकी थी वो आबाद होना शुरू हो गई। मैं सजदे में गया तो मुझे मिठास मिलना शुरू हो गई। अब मैं सजदा लंबा करते जाता हूं, तस्बीह बढ़ा रहा हूं, रब के हुजूर सजदा रेज हूं, मैं उधर सजदा कर रहा हूं, मेरी बीवी मेरे लिए दुआएं मांग रही है। मुझे ऐसा लुत्फ मिला कि जिंदगी में पहली बार मुझे उस दिन सुकून मिला था। सुबह हुई, मैंने नाश्ता किया, फसलों में गया। जब वहां पहुंचा ना, तो वहां जब पहुंचा तो मेरा दिल ही ना लगे, बैठा डेरे पर था, दिल मेरा मोहल्ले की मस्जिद में था कि कब अजान हो और मैं जाकर वहां सजदा करूं, रब की नमाज पढ़ूं। जब अजान हुई मैंने नमाज पढ़ी, ज़ोहर असर फसलों में पढ़ी, मगरिब के वक्त मस्जिद में गया, मगरिब भी पढ़ी, इशा भी जमात से पढ़ी। जब घर पहुंचा ना तो बीवी ने पूछा कि आज काफी लेट हो गए हो, खैर तो है? मैंने कोई जवाब ना दिया। जब खाना लाई तो मैंने पहला लुकमा मुंह में डाला तो इतनी लज्जत मिली कि मैंने जिंदगी में ऐसा खाना नहीं खाया था। पूछा ये खाना कैसा, किसने बनाया, इतनी लज्जत? जवाब दिया बात यह है, बर्तन भी तुम्हारे घर के,
आटा भी तुम्हारे घर का, आग भी तुम्हारे घर की, मिर्च मसाला भी तुम्हारे घर का, सब कुछ वही है, लेकिन आज पहली मर्तबा तेरे घर में मैंने खाना बनाया है। बस काम दो मैंने किए हैं, खाने से पहले वुजू किया है, जब खाना बनाया तो रब के महबूब पर दरूद पड़ा है। तो रब ताला ने उसकी बरकत ये दी है कि खाने को लजीज बना दिया है। और जब वो बर्तन उठाने लगी तो मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा कोई बात है तो बताओ। तो उसने जवाब दिया, हाँ एक अर्ज करनी है, अगर इजाजत हो तो सुबह के लिए जगा दूं। तो मैंने उसका बाजू पकड़ कर पास बैठाया और कहा सुबह के लिए नहीं, आज तहज्जुद के लिए मैं तुझे जगाऊंगा। तो रब के महबूब ने फरमाया है क्या कि कुछ लोग नेकी की चाबी और बुराई के लिए ताला होते हैं। तो अगर अच्छा दोस्त मिल जाए तो फिर क्या होता है कि वो बंदे को सीधे रास्ते पर लगा देता है, वो बंदे को अच्छे रास्ते पर लगा देता है, शरीयत मुस्तफा का पाबंद बना देता है, वो बंदे को नमाजी बना देता है। आज देखो रब के महबूब जो हैं, जो अल्लाह वाले हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी रब को याद किया है, अगर उनके करीब बैठो तो बंदा रब का नेक बंदा बन जाता है। तो हम अपने बारे में सोचें, क्या हम भी नेकी की चाबी हैं या बुराई की चाबी हैं? तो अपने आप को सुधारें, नेक लोगों के साथ बिठाएं, ताकि हमारा ताल्लुक भी वद्दुहा के चेहरे वाले के साथ हो जाए, महबूब आलम के साथ हो जाए, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ हो जाए। एक शख्स लिखता है कि मिस्र के अंदर मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मैं बाहर निकला तो दरवाजे के करीब दो बुजुर्ग बैठे थे और वो मजजूब थे। मजजूब वो होते हैं कि एक विलायत की एक किस्म है कि उलमा फरमाते हैं कि इतने मकाम पर पहुंच जाते हैं कि उनके जिस्म का रुआं रुआं अलग हो जाता है, वो रब का जिक्र करता है, उन्हें मजजूब कहते हैं। दो बैठे थे और आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। तो एक ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? तो दूसरे ने बताया कि इसे मोबाइल कहते हैं। ये मोबाइल है, इसके जरिए बात होती है लोगों से। किसी का नंबर लिखो तो आगे दूसरे बंदे से कॉल हो जाती है, बंदा बात कर लेता है। तो दूसरे मजलूब ने पूछा, अच्छा जिसका नंबर भी मिला वो मिल जाता है? जी हाँ मिल जाता है। उसने कहा मोहम्मद अरबी का नंबर है आपके पास? तो वह पहला मजलूब जो था उसने मोबाइल को उठाया, दीवार पर देकर मारा और कहा है रब का नेक बंदा, दुनियादारों से बात करनी हो तो मोबाइल के जरिए होती है, अगर रब के महबूब से बात करनी हो तो दरूद के जरिए होती है। उठा तस्बीह, पढ़ जितना दरूद पढ़ता जा, मंजिलें तय करता जा, एक वक्त ऐसा आएगा कि रब का महबूब तुम्हें अपना दीदार अता फरमा देगा। तो सामीन मोहतरम, कुछ लोग नेकी की चाबी और बुराई का ताला होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त भी होते हैं कि जिनके करीब बैठो तो बंदा शरीयत से दूर हो जाता है, वालिदैन का नाफरमान हो जाता है, लोगों की हिम्मत करने वाला हो जाता है। तो अपने आप को सुधारें, नेक लोगों के पास बैठाएं, ताकि हम भी बुराई की चाबी नहीं बल्कि नेकी की चाबी बन जाएं। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक तआला